आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि जितने भी डाउट्स होंगे आज वो क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Program is a set of instructions given to a computer to perform any operation. All these are the examples of programming languages: Python, C, C++, Java. Python is a very popular and easy to learn programming language created by Guido van Rossum in 1991. It is used in variety of fields including software development, web development, scientific computing, big data, and artificial intelligence. It has various uses. Working with Python. So you already know that how we write programs in Python language. To write and run a programming language, we need to have a Python interpreter that is called Python shell. To run a program in Python, one is interactive mode and the other is script mode. So what is interactive mode? We can type a Python statement on the prompt directly. Working in the interactive mode is convenient for testing a single line code. अगर हमें कोई छोटा कोड लिखना है, अगर हम सिंगल लाइन का कोड लिखते हैं या कोई स्मॉल कोड लिखते हैं, स्मॉल प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम इसमें जो है इंटरेक्टिव मोड में हम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट मोड. In the script mode, we can write a Python program in a file, save it, and then use it as a user interpreter to execute the program from the file. तो हम ये कैसे लिखते हैं? पहले हम क्लिक करते हैं, क्लिक फाइल न्यू. हम फाइल पे जाएंगे और हम न्यू पे क्लिक करेंगे. ठीक है, फाइल पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे टू क्रिएट अ न्यू फाइल, एंड देन वी विल राइट आवर प्रोग्राम, एंड देन वी विल सेव इट with the desired name and with the extension .py, and then we will run the program. So this is a shortcut key to run the program, that is F5. So you should remember it. This is very important. Keywords are the reserved words. Reserved words means that it cannot be changed. The meaning cannot be changed. We have to use it directly. We cannot change the name. As a Python is case sensitive, keywords must be written exactly as given in the table. So you can see that all these are the keywords. हम इनको चेंज नहीं कर सकते, हम इनको एज इट इज यूज कर सकते हैं. हम इनका नेम चेंज नहीं कर सकते, हम इनका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते. सो ऑल दीज आर द कीवर्ड्स: while, is, not, def, continue, else. All these are the keywords which are used in the programming. Next is identifier. Identifiers are the name used to identify a variable, function or other entities. सो आइडेंटिफायर क्या होता है? जैसे हमें कोई नेम लिखना है, हमें कोई नेम देना है किसी को, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? दैट इज आइडेंटिफायर. सो ये जो नेम होता है, द नेम शुड बिगिन विद द अपर केस और द लोअर केस. अपर केस भी हो सकता है या लोअर केस भी हो सकता है, अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर साइन. सो इट कैन कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स A to Z, small a to Z, small characters A to Z, capital alphabets A to Z, 0 to 9 नंबर्स भी हो सकते हैं, और अंडरस्कोर करेक्टर. थस एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट. एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखनी पड़ेगी, दैट आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट. नेक्स्ट इज दैट इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ. छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, बट इट इज़ प्रेफर्ड दैट इट शुड बी केप्ट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल. हम उसको छोटा ही यूज़ करें, छोटी लेंथ का ही यूज़ करें. It should not be a keyword or the reserved word. It should not be a keyword. जो भी हमने डिस्कस किया था कि वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए. Because it is a reserved word. We cannot change it. So we cannot use it. It cannot use a special character. हम इसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, like alpha, hash, dollar sign, percentage sign. We cannot use it. For example, जैसे हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 सब्जेक्ट्स. जैसे हमें मैथ्स के मार्क्स निकालने हैं, इंग्लिश, इन्फॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो हमें कोई नेम देना है इनको, मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश एंड इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस. तो हमने कोई भी नाम दे दिया, जैसे मार्क्स मैथ, मार्क्स इंग्लिश, मार्क्स आईपी. तो हमें जैसे एवरेज निकालना है, ठीक है, तो एवरेज हमें इन तीनों का निकालना है. सो एवरेज हमने लिख लिया, ठीक है. एवरेज क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू मार्क्स of maths plus marks of English plus marks of IP divided by 3. नेक्स्ट टॉपिक इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल. कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है,
एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। फॉर एग्जांपल हमने कोई वैल्यू ले ली पाई, ठीक है, सो पाई यू नो पाई इज इक्वल टू 3.1422/7। सो हमने तो ये जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे अगर हम कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, और उसकी हमने वैल्यू जो है वो फिक्स करनी है, ठीक है, सो दैट जो उसकी वैल्यू है वो प्रोग्राम में चेंज ना हो पाए। सिमिलरली जैसे जी है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, और या हम कभी कभी 10 भी ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट इज वेरिएबल। वेरिएबल इज़ एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन चेंज, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है। तो प्रोग्राम में जैसे हमने सपोज लिया a इज इक्वल टू 10, ठीक है। सो अब हम उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है, बाय 1। सो अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज़ 11, ठीक है। तो जैसे उसकी वैल्यू है वो चेंज हो रही है प्रोग्राम में, सो दैट इज़ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल वेरिएबल एज can have different value for different person. The remaining topics we will continue in the next class.